So today we are going to start a new unit, that is second unit, that tells cybercrime and cyber security. Again, some topics are very conceptual and some topics are very informative. So please try to gather the information, nothing else. Now, cyber crime and cyber security. What is the meaning of main basic funda of cyber crime and cyber security? Actually, we will learn in this unit. Here, first topic we are going to discuss, that is how criminal plans the offenses. How criminal plans the offenses. This is a very general observation it have. तुम लोग अगर थोड़ा सा डीपली सोचोगे एज ए जनरल, यू कैन यूज योर IQ पावर टू गिव दैट पर्टिकुलर आंसर. हाउ क्रिमिनल प्लान ऑफेंसेस. सो बेसिकली क्रिमिनल जब भी कुछ प्लान करेगा कोई भी अटैक का, दे आर बेसिकली हैव थ्री स्टेजेस. बेसिकली इट हैव थ्री स्टेजेस. सो वो थ्री स्टेजेस के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे. वो तीन स्टेजेस, अब देखो इससे पहले what is the type of attack it have, that you have to understand. Who is Rakesh? Who is joining? Rakesh. Okay. Now, so how criminal plans the offenses. Cyber criminals use internet for illegal activities, to store data, contacts, account information, etc. People who involved in this particular, uh, offenses, he is called crackers. So basically first you have to learn who is cracker, who is hacker, and who is freakers. Please try to understand who is cracker, who is hacker, and who is freakers. So there are basically three words generally हम लोग miscommunication करते हैं. So that is the thing. First we are going to learn that particular thing. इसके बाद हम आएंगे फिर how criminal plans the offenses. So first you have to learn this hacker, crackers and freakers. Who is hackers? Basically hacker जब भी तुम्हारे दिमाग में आता है तुम लोग नेगेटिवली उस वर्ड को लेते हो, बट हैकर इज नॉट ए बेसिकली नेगेटिव वर्ड्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब भी तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड आता है हैकर, तुम समझ जाते हो कि ही इज डूइंग सम इलीगल एक्टिविटीज. नो, दिस इज नॉट. हैकर्स का मीनिंग है हैकर्स इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ये हम लोग बहुत कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है. ये हैकर्स नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी फैल जाता है. बहुत सारी चीज नेगेटिव थिंग्स तुम्हारे दिमाग में आता है कि ही कैन क्रैक एवरीथिंग, ही कैन हैक एवरीथिंग, ही कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. सो इस तरह का बहुत सारे वर्ड तुम्हारे दिमाग में आता है, बट एक्चुअली नहीं है. हैकर बेसिकली हु knows the who have a large amount of knowledge about the computer. Simply this particular thing, this particular persons are called hacker. Hacker is just called smart programmer. Basically smart programmer जो भी होगा उसको हम बोलेंगे hacker. He can hack, he can do everything in computer, but कभी वो गलत वे में यूज करता है, कभी ये गलत वे में यूज नहीं करता है. बोथ आर हैकर्स, बोथ आर हैकर्स. दैट मींस हैकर वर्ड जब भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, हैकर इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड. हैकर के बारे में ऐसा नेगेटिविटी नहीं समझोगे. हैकर मींस ही इज अ वेरी स्मार्ट प्रोग्रामर. he has very large amount of very vast knowledge about programming language, about computer. He has very large knowledge. This is called hacker. He can break everything. That means जो भी हैकिंग इलीगल एक्टिविटी कर सकता है ये, बट करता है या नहीं करता है दैट डिपेंड्स. ये हैक कर सकता है, दैट मींस इलीगल एक्टिविटी वो कर सकता है. दे रिक्वायर डेटा कंसर्न द वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी होल्स, सो दे कैन एक्सप्लॉइट एंड डैमेज और स्टील द नॉलेज. दैट मींस एवरीथिंग ही कैन डू. दिस इज कॉल्ड हैकर.
but actually who does this activity, who does this activity, that means ये जो illegal activity हम लोग, ये illegal activity जो करेगा वो actually उसको बोला जाएगा cracker. This is not a hacker. जो illegal activity के साथ कोई भी काम करेगा, he is called crackers. So they are the ones who break the different system with miscellaneous intent. They carry our activities for making unauthorized access, destroying necessary information, stopping services provided by the server. Crackers can easily identify it because of their actions and malicious things. That thing you have to understand कि cracker actually illegal activity करता है. Hacker means simply hacker is a not a very negative word. Hacker means he is a smart program, he know programmer, ये वो बहुत सारे चीज जानता है, that is he is called hacker. But cracker किसको बोलेंगे? जो actually वही hacker ही है. Cracker is also a hacker. Cracker is also a hacker, but hacker का sub part. That means not always hacker will involve the illegal activities. Cracker will always involve with the illegal activities. That is the simple thing you have to understand. Hacker or cracker. Hacker can destroy everything. Hacker have the knowledge to destroy everything, but hacker generally does not do that particular thing. Hacker generally does not do that particular thing. Cracker actually does that particular illegal activities. That you have to understand. Now, who is freaker? Freaker means phone calling, phone plus freak. This is freaker. That means he can destroy the क्या बोलेंगे, the system of phone calls. phone call को ये hack कर देगा. This is called freaker. He is not very smart about programmers. ये प्रोग्रामिंग नहीं जानता है. फ्रीकर प्रोग्रामिंग नहीं जानता है, बट ही इज वेरी कम्युनिकेशन, मतलब वेल इंजीनियरिंग, वेल नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन ही हैव, वेल नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन ही हैव. दैट मींस मोबाइल फोन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, दैट कम्युनिकेशन ही कैन ब्रेक. he is called freakers. This is not hacker, not cracker. So this is the thing. So here they are the ones who gain illegal access to the telephone system. That is simply you have to understand. So telephone system से अगर जुड़ा हुआ है, he is calling freaker. अगर कोई illegal activity telephone system से ये कर रहा है, he is calling freaker. अगर इंटरनेट के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई illegal activity करेगा, he is calling cracker. Hacker is not a always illegal activities. That is not always involved in illegal activities. लीगल काम में भी हैकर जुड़ सकता है, बट क्रैकर नेवर डू दिस. बेसिकली दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन हैकर, क्रैकर एंड फ्रीकर. इसके बारे में बहुत लिखा हुआ है. पूरा टेलीफोन सिस्टम के अंदर अगर कोई हैकिंग करेगा, ही इज कॉल्ड फ्रीकर्स. अगर इंटरनेट सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम में कोई अगर इलीगल एक्टिविटी करेगा, ही इज कॉल्ड क्रैकर्स. एंड हैकर इज बेसिकली हु इज ए स्मार्ट प्रोग्रामर. He knows all the holes, but he does not involve with the illegal activity. Not always. So that is he is hacker. Now we are coming how criminal plans that. Criminals generally attack is divided into two parts. Attack is divided into generally two parts. One is passive attack, another is active attack. In other sense, these also divided into two parts, which are inner attack and outer attack. That means hacker have two categories. Basically, attack have two categories. Basically, one is active attack and passive attack. Active attack and passive attack. So criminal plans passive और active attack. So active attack का अलग प्लानिंग वो लोग करेगा और passive attack के लिए अलग प्लानिंग वो लोग करेगा. So criminals generally plans according to their need, active attack and passive attack. Active attack के हिसाब से वो प्लान दूसरा होगा, passive attack के हिसाब से वो प्लान उसका प्लान दूसरा होगा.
So that we are coming towards the point, passive attack क्या है, active attack क्या है. And also there these attacks can be categorized either inside attack or outside attack. इस दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है कभी कभी. So that is the thing. तो हम लोग ये चार के बारे में पहले समझना होगा तुम्हें. See what is active attack, what is passive attack, what is inside attack and what is outside attack. That four things first you have to learn. Then the way comes कि how they can plan. So इसका दूसरा तीसरा प्लानिंग होगा करने का. दो तीन प्लान होगा according to their attack. According to their attack they will plan actually. So now first you have to learn what is active attack and passive attack. So passive attack is first. Okay, one thing I'm giving you some examples at active attack and passive attack. I'm giving some examples. Passive attack means he will not destroy everything. He is trapping someone. He is not destroying anything. Passive attack का मतलब अच्छा से समझना. Passive attack का मतलब he is not destroying anything. He is capturing some illegal things. That means अगर किसी ने तुम लोग एक दूसरे के बीच में कोई पर्सनल मैसेज शेयर कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ एग्जांपल्स. अगर तुम लोग आपस में दो लोग हो, तुम लोग दो लोगों के बीच में कुछ पर्सनल मैसेज शेयर हो रहा है. अब क्या तीसरा पर्सन क्या करेगा, उस सिस्टम में घुस के वो क्या कर रहा है, सिंपली सारे इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है. ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. कुछ मैसेज उसने कुछ किया नहीं है, वो क्या किया, सिर्फ वो पढ़ रहा है. दिस इज ए पैसिव अटैक. वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है. ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. जो भी चीज, जो भी तुम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दो के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, बीच में कोई अगर एक सिस्टम बना दिए, तुम उस सिस्टम में घुस गए और घुस के दोनों का मैसेज खाली तुम पढ़ रहे हो. Simply this particular thing is called passive attack. He is not doing anything. But what is active attack then? Active attack means, try to understand again. क्या किया तुम लोग, किसी ने लिखा हेलो, मैंने क्या किया, उसी सिस्टम में मैं भी इन्वॉल्व हूं. तुम लोग समझ रहे हो, जो दोनों के बीच में पर्सनल मैसेज शेयर हो रहा है, वो दोनों समझ रहे हैं कि सिर्फ हम ही दोनों हैं. बट एक थर्ड पर्सन मैं हूं वहां पे प्रेजेंट. मैं हर चीज देख रहा हूं. हर चीज अगर मैं देखूंगा, दिस इज पैसिव अटैक. वहां पे क्या किया मैंने, किसी ने लिखा हेलो, हेलो को मैंने रिसीव कर दिया और लिख के उसको खत्म कर दिया. हेलो को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया. डिस्ट्रॉय करके उसके जगह मैंने बोला मारेंगे एक तबरक, लिख के भेज दिया दूसरे पर्सन के पास. तो क्या किया, तुम लिखे हेलो, लेकिन उसके पास पहुंचा क्या, मारेंगे एक तबरक. सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव अटैक. That means he is destroying some information. Actively he is doing some attack. That means वो दोनों के बीच में दरार करने का मैं कोशिश कर रहा हूं. So this is called actively I am participating on that. I am not, if I not participate on that, I am not gathering the information. Only I am gathering the information. Then it is called passive attack. If I am involving with the message transfer, मैं अगर वहां पे इन्वॉल्व हो जाऊंगा, then it is called a active attack. That's the simple concept, passive attack and active attack. So passive attack means, here you can see, computer security attempt to steal information stored in system is electronic weaponry similar means. Although in construct to active attack, passive attack does not attempt to interface to stored data. It may still constitute the criminal offenses. That means ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, स्टोर डेटा पे कुछ स्टील नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, बिकॉज तुम थर्ड पार्टी हो के इलीगली तुम देख रहे हो वो चीज. स्टिल दिस इज कॉल्ड ए पैसिव अटैक. दैट इज सिंपल थिंग, पैसिव अटैक. पैसिव अटैक इन्फॉर्मिंग द गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विद हिज और हर नॉलेज, विदाउट हिज और हर नॉलेज. दैट मीन्स तुम दोनों नहीं जान रहे हो कि मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, बट आई एम गैदरिंग द इंफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड पैसिव अटैक. So passive attack is the first step. Basically, passive attack may be the first step of, please try to understand, may be the first step of their plan. That means जब criminal offense होगा, passive attack जो होगा
वो होगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर प्लान। प्लान का फर्स्ट स्टेप होगा पैसिव अटैक करना। दैट मींस आई एम ओनली द गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर विक्टिम। विक्टिम जो मैं टारगेट जिसको मैंने किया है उसका इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूं। That may be other way, that may be message passing, that may be anything else, that may be any other options are there. So मैं simply try to we are trying to gathering the information. So that is the simple thing does in passive attack. So passive attack is a part of their plan. Passive attack is a part of their plan. Active attack करने से पहले तुम्हें passive attack करना जरूरी है। So that's the simple thing. एक plan का एक हिस्सा है। एक्टिव अटैक करने से पहले तुम्हें पैसिव अटैक करना जरूरी है। सो पैसिव अटैक जनरली सी शार्पिंग ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप लाइक ऑरकुट, फेसबुक विल प्रूव यूजुअल गेन टू इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। सबका इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूं कि कहां पे तुम क्या करते हो, तुम किस पर्टिकुलर किसके साथ ज्वाइंट हो, किसके साथ जुड़े हुए हो, किसके साथ तुम्हारा फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है। एवरी इंफॉर्मेशन आई एम गैदरिंग टू हैक योर सिस्टम और टू अटैक ऑन यू। अटैक करने से पहले मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं। दिस इज एक्चुअली द पैसिव अटैक। नाउ व्हाट इज एक्टिव अटैक? एक्टिव अटैक इट मींस वी आर डैमेजिंग समथिंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, और कुछ इलीगली कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करने का कोशिश कर रहा हूं। you are just modifying some डेटा को मैं मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एक्टिव अटैक। तो मैं एक्टिव अटैक करने से पहले मुझे करना क्या है? पैसिव अटैक। दिस इज वन स्टेप। तो ये एक्टिव अटैक के लिए अलग प्लान होगा, पैसिव अटैक के लिए अलग प्लान होगा। सो दे प्लान एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ द अटैक। सो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव अटैक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनसाइड अटैक एंड आउटसाइड अटैक। अगेन inside attack means this inside attack actually comes under a organization or a network। तुम अगर सिंपली ये एक इनसाइड का मतलब समझो। इनसाइड मतलब क्या? अपना, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना अटैक कर रहा है। दैट मीन्स मान लो तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है या तुम्हारा एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, उस नेटवर्क के बीच में कोई उसी में से कोई एक अटैक कर दिया। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जुड़े हुए हो तुम लोग, उसी में से कोई तुम्हारा अटैक किया है, इनसाइड अटैक। दैट मींस जिसके साथ जनरली हम लोग मैसेज शेयर करते हैं, किस कोई क्या किया, तुमसे दोस्ती बनाया, दोस्ती बना के सारे इंफॉर्मेशन तुमसे निकलवा लिया और निकलवा के जो है अटैक कर दिया। दिस इज इनसाइड अटैक। Insider. And what is outside attack means? You can understand outside attack. Outside attack means you don't know who are attacking. मैं नहीं जान पाऊंगा। Again, please try to understand. Outside attack के अंदर inside person भी हो सकता है। तुम्हारा inside person भी हो सकता है तुम्हारा outside attack में। अगर ये unknowingly, अगर तुम्हें नहीं पता चलने दे रहा है कि कौन अटैक में कर रहा हूं, anonymously या he is doing attack, he is involving in attack, then it is, अगर unknowingly they are doing the attack on you, they also treated as outside attack. You cannot understand who are attacking from outside internet, which outside internet तुमने यूज किया and यूज करके तुम insider होके भी outside बन के अटैक कर रहे हो। So that is also treated as outside attack। मतलब बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन का बाहर से आके कोई तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटैक कर रहा है। So that is the called outside attack। So ये 2-4 तरीके के हिसाब से तुम लोग प्लान करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व, दिस प्लानिंग स्टेज इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द अटैक टाइप। कौन सा अटैक मैं यूज कर रहा हूं, कौन सा अटैक मैं यूज करूंगा, कौन सा मैं अटैक करने जा रहा हूं, दैट अटैक उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जनरली ये प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग बेसिकली मैं बोला था प्लानिंग का स्टेजेस बेसिकली 3 है। 3 स्टेज में ये अटैक करता है। फिर फर्स्ट फेज दिस कॉल्ड रिकॉग्नाइजेंस मींस information gathering phase. This is actually information gathering phase. Actually passive attack के थ्रू ही ये information gathering phase किया जा सकता है। passive attack के थ्रू ही हम लोग
ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। तो दैट इज द पार्ट, इसी पार्ट में जो इन्वॉल्व रहेगा दैट इज कॉल्ड पैसिव अटैक। सिंपली पैसिव अटैक के थ्रू ही ये अटैक हो सकता है। This is information gathering phase, first phase. This is information gathering phase. Second phase is scanning. Most of the attacker generally involved with the second phase. Maximum time they generally पास करता है इस सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर अटैक प्लानिंग। अटैक करने से पहले तुम्हें तीन, ये जो सेकेंड फेज है, स्कैनिंग ऑफ गैदर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एज वेल एज आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग वीकनेस। ये एग्जिस्टिंग वीकनेस को पता करने के लिए तुम्हें सेकेंड फेज स्कैनिंग द गैदर्ड इंफॉर्मेशन, तुम उस चीज को ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ने का कोशिश करोगे कि हाँ कहां पे ये लूप होल है किसी सिस्टम में, कहां से मैं एंट्री कर सकता हूं, कहां से मैं जाके मैं अटैक कर सकता हूं। यू हैव टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गैदर दैट इंफॉर्मेशन, दैट व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज, ताकि हम उसके थ्रू ही अटैक कर पाए। दिस इज द सेकेंड फेज एंड मैक्सिमम टाइम इज attacker maximum time gives in this particular stage। ये जो स्टेज है, इसी पर्टिकुलर स्टेज में मैक्सिमम टाइम वो लोग इन्वॉल्व रहता है। अटैकर मैक्सिमम टाइम इसी फेज में कट भी चलता है। अरे ये फेज में क्या हुआ, ये टोटल थिंग दे आर रेडी कि इसके बाद यहां जाएंगे, इसके बाद यहां जाएंगे, इसके बाद यहां जाएंगे, प्लान्ड, वेल प्लान। उसके बाद दे आर लॉन्चिंग एन अटैक। सो थर्ड स्टेज दैट इज लॉन्चिंग एन अटैक वो उसके बाद वो कर देगा। So there are basically three stages. Yes. Sir, second step is repeat. Second stage simple, scanning the gathered information for the validity of the information as well as to identify the existing weakness। मान लो सिंपली किसी तुम लोगों में से किसी के पास जो हम लोग बोलते हैं ना, खा मम्मी का कसम, ये वर्ड बहुत इफेक्ट करता है तुम्हारे किसी के पास। मे बी खा मम्मी का कसम एक बहुत बड़ा कसम होता है जनरल। तो ये तुम्हारा वीकनेस है। वो अटैकर क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा। सो इंफॉर्मेशन पहले ये गैदर किया, फर्स्ट स्टेज इंफॉर्मेशन इसने गैदर किया, उसके बाद वो टारगेट करके उसको एनालाइज किया, बहुत देर तक एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसके मिला कि ओके मम्मी का कसम इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कुछ भी हम काम करवा सकते हैं उससे, उस कसम से। दिस इज योर वीकनेस। सो ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया जाता है सेकेंड स्टेज। उसके बाद उसके थ्रू ये जो वीकनेस मुझे मिला, उस वीकनेस के थ्रू लॉन्चिंग एन अटैक को लॉन्च किया जाता है। इज दैट क्लियर? 3 stages? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay, now this planning have basically these 3 stages। इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज जो पैसिव अटैक के थ्रू आता है, उसके बाद स्कैनिंग द गैदर्ड इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग का मतलब यू हैव टू वेरीफाई इट, बहुत देर तक तुम लोग उसको देखे एग्जामिन किए, एग्जामिन करने के बाद मिला ओके दिस पोर्ट इज ओपन, ये पोर्ट ओपन है, चलो इसी पोर्ट के थ्रू हम लोग घुसने का कोशिश करते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट होता है, ये गैदर किया कि हाँ एक पोर्ट ये है जो कि काम नहीं कर रहा है फिर भी ओपन है, चलो उसी पोर्ट के थ्रू हम लोग अटैक करते हैं। दैट लूप होल्स दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, देन थ्रू दैट आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, जो ये आइडेंटिफाइड वीकनेस मिला, उस वीकनेस के थ्रू अटैक को लॉन्च करता है। दैट इज द थर्ड स्टेज। नाउ फेज 1 मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसको लेके। हियर दिस पर्टिकुलर फेज बेसिकली, इस पर्टिकुलर फेज के बारे में जिस तो बने बोल दिया, बट इस पर्टिकुलर फेज स्टार्ट होता है फुटप्रिंटिंग से। फुटप्रिंटिंग का मतलब समझो, फुटप्रिंटिंग मतलब कहां तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, दैट इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट गैदर्ड।
दैट मीन्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज के लिए भी तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग दैट मीन्स दिस इज प्री अटैक फेज। प्री अटैक फेज में जाने से पहले भी एक प्रिपरेशन का जरूरत होगा, दैट इज कॉल्ड फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग मीन्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जहां जहां जाता हूं, मेरा यहाँ पे एक प्रोफाइल है, फेसबुक में एक प्रोफाइल है, मेरा लिंक्डइन में एक प्रोफाइल है, मेरा एक ऑर्कुट में एक प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम में मैं फॉलो करता हूँ। सो ये इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ तुम्हारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, दैट इज योर फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग जहां जहां तुम इन्वॉल्व हो, कोई एक्टिविटी में तुम इन्वॉल्व हो, वो इंफॉर्मेशन भी उसके पास पहले गैदर करना होगा। That is the first step of phase 1. phase 1 का फर्स्ट स्टेप, इन phase 1 में होगा क्या, इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही होगा, बट इंफॉर्मेशन गैदरिंग से पहले भी एक स्टेप है, दैट इज कॉल्ड फुट प्रिंटिंग। तुमको ये चीज पता करना होगा कहां कहां ये जाता है, कहां कहां इन्वॉल्व है। तो ये पता करने के लिए एक फेज बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फुट प्रिंटिंग। नाउ फुट प्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप। Footprinting gives an overview about the system weakness and provides a judgment about how to break this. ये footprinting देख के तुम्हें अब समझना होगा कैसे हम पैसिव अटैक कर सकते हैं, कैसे हम पैसिव अटैक कर सकते हैं। ये वीकनेस को दिखाएगा कि हाँ, तुम शाहरुख खान को फॉलो किए हो फेसबुक में, तुम सलमान खान को फॉलो किए हो। तो दीज आर द वीकनेस। ये दिखाएगा ये कि कैसे तुम जाया जा सकता है, कैसे तुम जा सकते हो। दिस एक्चुअली गिव्स ओवरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम, एंड आफ्टर दैट ही इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर गैदरिंग फेज में। अब वो इन्वॉल्व होगा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ कोई भी तरीके से कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा, कोई भी से तुम लोगों से जुड़ने का कोशिश करेगा। हो सकता है अननोइंगली और हो सकता है अननोइंगली भी तुम हो सकता है तुम्हारा सिस्टम के साथ वो फेसबुक का हैक करके बैठ गया, तो कोई भी कुछ चीज मैसेज हो रहा है वो भी देख रहा है। सो दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज इज first step is called footprinting, and then we are doing the information gathering phase. Second phase is scanning and scrutinizing. यहाँ पे स्कैनिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग में इन डिटेल्स अगर बोला जाए, दिस इज वन इन्वॉल्वमेंट, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इन्वॉल्व टू एग्जामिन दिस गैदर्ड इंफॉर्मेशन। पोर्ट स्कैनिंग मीन्स, मैं अभी बोला, कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स रहता है। मान लो तुम्हारा देखो, तुम्हारा लैपटॉप में या तुम्हारा पीसी में देखना, बहुत सारे ओपन पोर्ट्स होगा। पोर्ट्स इज ए लॉजिकल होल, दिस इज नॉट ए फिजिकल होल। दैट मींस फिजिकली जो जहां पे तुम लोग माउस लगाते हो, जहां पे तुम ये चार्जिंग पॉइंट है, दीज आर नॉट द पोर्ट्स। उस पोर्ट के अंदर में भी बहुत सारे लॉजिकल होल रहेगा, जिसके थ्रू एक्चुअली डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एक सिंगल माउस के थ्रू, तुम देखो सिंपल, एक माउस को तुम एक पोर्ट में डाले हो, वहां पे 8 पिन्स है, 8 16 जितना भी पिन्स है, कुछ ना कुछ पिन्स है। अब वहां पे वो जो पिन्स है, वो पिन के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब वहां पे भी बहुत सारे लॉजिकल होल होगा। ऐसा नहीं है कि ये तुम माउस क्लिक किए, कोई ना कोई सिग्नल अगर तुम माउस पे क्लिक किए, कोई ना कोई सिग्नल वो माउस इन कंप्यूटर को दिया, तभी वो क्लिक होगा। ये जो सिग्नल पासिंग का काम हो रहा है, कोई ना कोई पोर्ट के थ्रू हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग क्या करता है? पोर्ट स्कैनिंग क्या करता है? सिंपली तुम्हारा जो प्रोग्राम, तुम्हारा जो कंप्यूटर में जितना भी डेटा ट्रांसफर का होल है, जितना भी डेटा ट्रांसफर का पोर्ट्स होगा, उस सारे पोर्ट्स को वो एग्जामिन करेगा। वो देखेगा कि दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। जो भी ओपन पोर्ट्स होगा उसका इंफॉर्मेशन गैदर इसको देखते रहेगा। जो कोई भी पोर्ट ओपन अगर है, दिस पोर्ट इज ओपन, इस पोर्ट से कोई कुछ हो नहीं रहा, सो उस पोर्ट को टारगेट करेगा अटैकर कि हाँ, इस पोर्ट के थ्रू हम लोग उस कंप्यूटर से जुड़ने का कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड पोर्ट स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग क्या बोलेगा?
See, IP address related information. That means total जर्मन तुम्हारा जो जितना सिस्टम है वो सिस्टम में कौन सा आईपी एड्रेस ओपन है. कोई आईपी एड्रेस तुम मान लो तुम्हारा जो सिस्टम तुमने बनाया उसमें कुछ 4-5 आईपी एड्रेस है जो कि यूज नहीं करते हो तुम लोग. उस आईपी एड्रेस को देंगे तो उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा वो. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो अगर कोई आईपी एड्रेस दिया वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर नेटवर्क में घुस गया बिकॉज दिस इज ओपन. दिस आईपी एड्रेस इज ओपन. सो दैट आईपी एड्रेस जो ओपन आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को स्कैन करने का कोशिश करता है नेटवर्क स्कैनिंग. कौन कौन सा आईपी एड्रेस ओपन है जिसके थ्रू हम लोग उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा. एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मींस वीकनेस. दिस एक्चुअली इसके लिए ये जो पोर्ट स्कैनर और नेटवर्क स्कैनर इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है. बट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है. दैट इज ह्यूमन टास्क. दिस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग इज ए ह्यूमन टास्क कि हाँ अब मैं एग्जिस्टिंग वीकनेस को समझने का कोशिश करते हैं. अंडरस्टैंड. दिस इज अंडरस्टैंडिंग दिस आईपी एड्रेस. दिस इज एग्जिस्टिंग वीकनेस ऑफ दिस सिस्टम. दिस इज ह्यूमन टास्क. वल्नरेबिलिटी के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट में. बट दिस टू हैव सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कि कौन सा आईपी एड्रेस यूज नहीं हो रहा है, कौन सा पोर्ट ओपन है. इसके लिए सॉफ्टवेयर भी है. पोर्ट स्कैनर करके एक सॉफ्टवेयर है. देखना पोर्ट स्कैनर तुम्हारा, देखना ये ओपनली बोल देगा कौन कौन सा पोर्ट तुम्हारा ओपन है कंप्यूटर में. सो दैट इज एक्चुअली दैट सॉफ्टवेयर. दे यूजेस पोर्ट स्कैनिंग, दे विल डू network scanning, they will do vulnerability scanning, they will do from the gathered information, and then second stage is over. After scrutinizing they will, so यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है देख लो. they will grab the information about the loopholes. सारे loopholes इसने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया. Here usually नोट में एक लिख ले, usually most of the attackers consume 90% of the time, 90% of the time in scanning, scrutinizing and gathering information for target, and 10% time launching the attack. That means ये जो दो फेज है, इस दो फेज में 90% टाइम दे विल इन्वॉल्व. सबसे ज्यादा टाइम सेकेंड फेज लेता है. उससे पहले वाला फेज गैदरिंग फेज उससे भी कम स्पेस लेता है, और लास्ट वाला सबसे मिनिमम टाइम लेता है. 10% time only takes for launching the attack. That you have to understand. Now this is port scanning. Already I have discussed. Each computer enable 3 or more per external ports. Port scanning systematically scanning the computer ports. कौन कौन सा ports open है, कौन कौन सा ports close है, ये port scanner will do. That already I have discussed. Phase 3 actually the attack. Attack बहुत तरीके का हो सकता है. अब कितना तरीका का अटैक हो सकता है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. कितना तरीके का अटैक हो सकता है, डॉस अटैक हो सकता है. सो कब कैसे ये फॉलोइंग स्टेप्स क्या होगा उसके लिए बहुत सारे तरीका है. पासवर्ड क्रैक करो, सबसे आसान, सबसे तुम लोगों के दिमाग में यही वो क्रैक द पासवर्ड इस सबसे फर्स्ट दिमाग में आता है. इसके बाद एक्सप्लॉइट द प्रिविलेजेस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर घुसा दो, हाइड द फाइल्स, cover the tracks को cover कर दो, delete the access logs, all this, anything you can do. But actually in this phase attack is going on. जो attack मैं करने वाला हूं वो attack मैं कर रहा हूं. This is the passive attack one. Sorry, active attack one. Active attack takes place in third phase. Passive attack takes place in the first phase. Information gathering phase is the passive attack, and this is your active attack. Is the thing clear to you? Up to this is very clear. सर इन्यूमरेशन क्या था? यहाँ पे हाँ okay. सर, Enumeration means listing. Scrutinizing phase is called enumeration or listing of the hacking world. That means ये तुम स्क्रूटिनाइज करके लिख रहे हो ना कि ये दिस इज द फर्स्ट लूपहोल, दिस इज द सेकंड लूपहोल, दिस इज द थर्ड लूपहोल, दिस इज द फोर्थ लूपहोल, दिस इज द फोर्थ. दिस स्टेप इज कॉल्ड इन्यूमरेशन. ओके, दिस स्टेप इज कॉल्ड इन्यूमरेशन. ओके एवरीवन, क्लियर? यस. ओके, नाउ
now we are moving towards the social engineering. That is planning part done. Planning have basically a question aata hai how they will plan. So basically three stages. One is gathering phase, second is scanning phase, and third one is attack. So these three phases have a planning of the particular attacker. Now we are going towards the social engineering. What social engineering means, please try to understand. This is very interesting in the sense, this is a technique to influence. एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूं तुम लोगों को. तुम लोग मान लो एक दोस्त है तुम्हारा, दोस्त को तुमने बोला अरे बोलो ना क्या हुआ उस दिन, अरे उस दिन पार्टी में क्या हुआ, बोलो ना बोलो ना, अरे क्या हुआ बोलो ना. बोला नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, बोलो ना, अरे बोलो. अरे दोस्त को नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे. He is trying to influence him कि हाँ तुम्हारा क्या हुआ था उस दिन बोलो. गैदर्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक वे है सोशल इंजीनियरिंग. इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज का एक पर्टिकुलर वे है सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग मीन्स टेक्निक टू इन्फ्लुएंस पीपल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. दैट इज द सिंपल सोशल इंजीनियरिंग का मतलब. सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपना दोस्त को कि प्लीज बोलो ना भाई, अरे बोलो ना, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे. सो दैट इज द सिंपल थिंग तुम लोग जो करते हो, ये चीज को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग. टेक्निक टू इन्फ्लुएंस पीपल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन कौन सा पैसिव अटैक का एक एग्जाम ये हो सकता है. तुम इंफॉर्मेशन गैदर किए और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद इन्फ्लुएंस करके इंफॉर्मेशन सोशल इंजीनियरिंग करके तुमने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया. दैट इज द सिंपल वन वे. सोशल इंजीनियरिंग इज वन वे टू डू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन. Okay, it is generally observed that people are weak link in security and the principle makes social engineering possible. सोशल इंजीनियरिंग इज सिंपल थिंग. ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें खुद समझ में आ रहा है क्या है. सिंपल, वेरी इजीली इट इज रिटन. तो इन्फ्लुएंस करके तुम्हें गैदर करना है. अब तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे दो तरीका होता है, एक सिंपल थ्रू द इंटरनेट और थ्रू ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज फर्स्ट वन, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग. ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग दैट इज ह्यूमन. तुम अपने दोस्त से क्या कैसे तुम इंफॉर्मेशन करेक्ट करोगे, दैट इज ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग. और कंप्यूटर बेस्ड मीन थ्रू कंप्यूटर इट विल डू. सोशल इंजीनियरिंग मीन्स कंप्यूटर इट विल डू. कैसे ये किया जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ह्यूमन बेस्ड के अंदर क्या क्या आएगा, impersonating the employee or valid user. What it means? Impersonating an employee or valid users. What it means? बोलो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्या समझ में आ रहा है बोलो. hating the people. This means simple. एक तुम्हारा एम्प्लॉई है, मान लो तुम्हारा इसमें एम्प्लॉई है, वो निकालने के लिए वो पर्टिकुलर उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके सामने किसी दूसरा एम्प्लॉय का बुरा भला कहेगा, ताकि वो एम्प्लॉय उसके बारे में क्या सोचता है वो तुम्हारे सामने आ जाए. दिस इज द फर्स्ट वे. दैट मीन्स ये एक, मान लो मैंने तुम लोगों का क्लास में पूछा, अरे ये लड़का कैसा है बताओ तो, अरे हमको बहुत गंदा लगता है ये लड़का, ये जो है ना बहुत गंदा है, वो ये करता है, ये सब करता है. तुम तो बोले हाँ सर सही बात बोले हैं, ये सब चीज करते हैं. दैट इज द थिंग, इन्फ्लुएंसिंग दैट पीपल. ओके, दिस इज द फर्स्ट वे. ये पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन टू गेट इंफॉर्मेशन, ये तुम करके ये तुम लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन हो रहा है. कम्युनिकेशन करके तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, सच क्या है, झूठ क्या है. तो धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ा के क्या बोल, जानते हैं सर ये क्या किया था उस दिन, बोल दिया कुछ. दैट इज द वे, द फर्स्ट वन. सेकेंड वन, पोजिंग एज एन इंपॉर्टेंट यूजर.
दैट मीन्स तुमको बोलेंगे अरे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमको पता है तुमको कितना मैं मानता हूं, दिस इज द वे, दिस इज द वे। तो ये तुमको बोला जा रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्लास का बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुम मुझे देते रहना, लास्ट में बोल दिया। तो दिस इज द वे। सेकेंड, पोजिंग एज एन इंपॉर्टेंट यूजर। थर्ड, यूजिंग ए थर्ड पर्सन। मैं दूसरे को बुला रही हूं, उसको देखना तो क्या किया, क्या करेगा, तुम उसको फॉलो करते रहना। क्लियर, क्लियर कर पा रहा हूं मैं? यूजिंग थर्ड पर्सन, मैं तीसरा पर्सन को बोला कि भाई इसको फॉलो करते रहना, क्या कर रहा है तुम मुझे इंफॉर्मेशन देना, यूजिंग थर्ड पर्सन। फोर्थ वन, कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट। मैं उसको कोशिश किया, कोई मैं ये अरे ये नहीं जानता हूं, प्लीज बोल दो ये कैसा होता है, क्या होता है, ये मैं नहीं जानता हूं। तो उसने क्या किया, आके वो समझाने लगा, सर ऐसे 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 होता है, और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मैं गैदर करने का कोशिश, क्या जानता है क्या नहीं जानता है, दैट इज द वन वे। सो टेक्निकल सपोर्ट में बोला कि ये मुझे हेल्प कर दो, लेकिन वो हेल्प करने आया तुम, लेकिन उसके थ्रू कुछ डेटा गैदर करने का कोशिश कर रहे हो। शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर सर्फिंग मतलब मान लो तुम्हारे सामने, बहुत अच्छा से समझना, तुम्हारे सामने कोई एक पासवर्ड दे रहा है, तुम दूसरे तरफ आंख करके बैठे हो और मुंडी तुम्हारा दूसरे तरफ है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तिरछे आंखों से देख रहा है क्या पासवर्ड दे रहा है, अरे जी दबाया, अरे पी दबाया, अरे आर दबाया। दिस इज द थिंग, शोल्डर सर्फिंग। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दिस इज द शोल्डर सर्फिंग, मतलब वो कुछ पासवर्ड दे रहा है, मैं उसको मतलब दूसरा मैं उसको दिखा रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, बट स्टिल योर मतलब तुम्हारा आंख एकदम तिरछे उस पासवर्ड पे है, क्या पासवर्ड डाल रहा है देखने, अरे ये दबा। दैट इज द सिंपल थिंग, शोल्डर सर्फिंग। एंड डम्पस्टर डाइविंग, डम्पस्टर डाइविंग इज ए वे। डम्पस्टर डाइविंग मींस कुछ मतलब कुछ इंफॉर्मेशन तुमने, मतलब वो क्या क्या करता है, ये सारे इंफॉर्मेशन तुमने ग्रैब किया है, और मैं ट्राई कर रहा हूं, ट्राई एंड हिडन मेथड से, ओके ये उसका मम्मी को बहुत बहुत प्यार करता है, ये उसका मम्मी को उसके मम्मी के नाम पे पासवर्ड दे सकता है, ये उसका बीवी को बहुत प्यार करता है तो बीवी के नाम पे पासवर्ड हो सकता है, इसका उसका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड हो सकता है, अरे उसका फोन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ मिला के पासवर्ड हो सकता है। दैट इज द टेक्निक डम्पस्टर डाइविंग। Am I clear to you? Yes. Yes, sir. So these are the techniques for human based social engineering. मैं कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट पर्सन टू पर्सन इंटरैक्ट करके। ओके, नाउ फोर्थ and computer based social engineering. What is computer based social engineering? Okay, you are trying to give a fake email, ईमेल अटैचमेंट, पॉपअप विंडो, कुछ भी एक तुमने दिया, कुछ शो करवाया और शो करने के बोला पॉपअप विंडो भेजे के बोला अच्छा तुम यूजर आईडी पासवर्ड डालो, फिर तुम्हारा सिस्टम में जैसे तुम यूजर आईडी पासवर्ड लिया वो तुम्हारे पास आ गया। दिस इज यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू सम कंप्यूटर। फेक ईमेल, ये सब जानते हो, फेक ईमेल, एक फेक ईमेल भेज दिया, मैं $3000 तुमको देना चाहता हूँ, या $3 बिलियन मैं तुमको देना चाहता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, प्लीज उसके लिए तुम लोग अपना डिटेल्स भेजो। हो गया एक इंफॉर्मेशन गैदर। सो दैट इज द थिंग, कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। सो यू आर influencing someone to gather some information. That is called social engineering. एनर्जी है, आगे बढ़े या छोड़ दे? बोलोगे? पढ़ाइए सर, बढ़िया सर। ओके, पढ़ाइए सर, अच्छा लग रहा है सर। okay, now type of stalkers. What type of stalker will do? Stalker का मतलब समझो। Stalker means मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करके कुछ अटैक करूंगा,
इन्फॉर्म तुम्हारे साथ पर्सनली मैं ज्वाइन करके पर्सनली तुम्हें स्टॉकर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टॉकर्स, दैट मीन्स मैं तुम्हारे साथ पर्सनली कांटेक्ट किया, पर्सनली कांटेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा चीज में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद तुमको हैरेस करने लगे, हैरेसिंग समथिंग, दीज आर द थिंग्स स्टॉकर्स। मैं कुछ कामों में, कुछ इलीगल कामों में तुम्हें इन्वॉल्व कर दिया, अननोइंगली नोइंगली, बोथ, नोइंगली अननोइंगली बोथ हो सकता है। स्टॉकर्स क्या करेगा, तुम्हें नोइंगली और अननोइंगली तुम्हारा कोई इलीगल एक्टिविटी में तुम्हें जोड़ देगा, उसके बाद पैसा हड़पने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए वो तुमको हैरेस करेगा, ब्लैकमेल करेगा। These are the called stalkers. These are called stalkers. बहुत सारे अभी मार्केट में, बहुत सारे फेसबुक में बहुत सारे स्टॉकर्स अभी है, बहुत सारे स्टॉकर्स है। So these are the online, कुछ सम ऑफ ऑनलाइन, सम ऑफ ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब तुम जानते हो। ऑनलाइन स्टॉकर्स मींस वही सेम मैंने बोला कि चैट रूम, एक चैट रूम में हाय हेलो कुछ मैसेज किया, हाय हेलो मैसेज करके कुछ इलीगल एक्टिविटीज तुमने कर दी, उसके बाद तुमको हैरेस कर रहा है, प्लीज आई हैव दिस फोटोज विद मी, तुम ये पैसा नहीं दोगे तो मैं तुमको ये कर दूंगा, मतलब वायरल कर दूंगा वीडियो या कुछ फोटो। तो दैट इज द थिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन स्टॉकर्स। ऑफलाइन स्टॉकर्स सिमिलर थिंग, बट they are not involving they are not involving in internet. That means internet means some रास्ते में कोई लड़की जा रही है, पीछे पीछे एक लड़का फॉलो करते हुए जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टॉकर्स, ऑफलाइन स्टॉकर्स। सो ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी साइट पे भी कर सकता है, दैट मीन्स, बट दे आर नॉट very good knowledge, they does not have any very good knowledge of this इंटरनेट का कोई नॉलेज नहीं होगा उसके पास। बट सोशल इंजीनियरिंग, सोशल वेबसाइट में स्टॉकर्स और ऑफलाइन स्टॉकर्स भी हैरेस कर सकता है। ऑफलाइन तुम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए, उसके बाद उसको हैरेस कर रहे हो थ्रू सोशल नेटवर्किंग, दैट इज ऑल्सो गोज टू द ऑफलाइन स्टॉकर्स। ऑनलाइन नहीं, जो इलीगल एक्टिविटीज तुमने किया है, परफॉर्म किया है, उस इलीगल एक्टिविटी अगर तुम ऑनलाइन करते हो, दिस इज ऑनलाइन स्टॉकर्स। अगर इलीगल एक्टिविटी जो किया है वो ऑफलाइन किए हो, तो वो तुम्हारा ऑफलाइन स्टॉकर्स। बट ये जो हैरेसिंग पार्ट है, ये हैरेसिंग पार्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ये जो हैरेसिंग पार्ट, ये हैरेसमेंट तुम कोई भी साइट से कर सकते हो, ये सोशल नेटवर्किंग साइट में भी तुम हैरेस कर सकते हो, फोन में भी तुम हैरेस कर सकते हो। हैरेसिंग इज नॉट द पार्ट, तुम जो इलीगल एक्टिविटी में जुड़ गए हो, वो इलीगल एक्टिविटी अगर तुम ऑनलाइन की हो, दिस इज ऑनलाइन स्टॉकर्स, अगर तुम ऑफलाइन की हो, ऑफलाइन स्टॉकर्स। इज द थिंग क्लियर टू यू? दिस इज कॉल्ड स्टॉकर्स। सो वेरी हार्मफुल these things are. So now, case reported on cyber stalking. See, many cases, ex-lover, ex-spouse, boss, neighbor, these are the very big cases are involved in this particular cyber stalking. Or majority of the victim is women. Majority of the victim is women. जो केस रिपोर्ट हुआ है साइबर स्टॉकिंग का, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स आर वुमेन। दिस आर द इंफॉर्मेशन, दिस आर द नॉट फॉर वेरी क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट हैव। नाउ हाउ स्टॉकिंग वर्क्स, मैं बोल चुका हूं, तुम लोग इसको ज्यादातर बोलने का जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ सकते हो क्या होता है, स्टॉकर्स कैसे काम करता है। बिकॉज यू आर नेट सर्फिंग तुम लोग जनरली करते हो, तो बहुत सारे चीज इस तरह का चीज हो रहा है जिसपे तुम चैटिंग कर लिए, तुम उसपे कुछ उल्टा चैटिंग किए हो, उस चैटिंग को लेके स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें बोल रहा है मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। स्टॉकर्स, दीज आर द थिंग हाउ स्टॉकिंग वर्क्स। स्टॉकिंग पहले तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगा, स्टॉकर्स कांटेक्ट करके कुछ इलीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व कराएगा, और इन्वॉल्व करवाने के बाद वो हैरेस करेगा तुम। दैट इज सिंपल स्टॉकिंग वर्क्स।
Is the thing clear? Now real life example. Indian police have, ये दिल्ली में एक केस हुआ था. Mrs. Joshi received almost 40 calls in 3 days. Most are odd hours. 40 calls उसने रिसीव किया था. Like this. इसी स्टॉकर्स के जरिए. ये क्या किया था? Decided to register complaint किया. देखा गया कि यहाँ चैट किया गया था उसके थ्रू. ये एक पर्सन से वो चैट किए थे मिसेस जोशी through this particular site. That is real life example of stalking. Is that clear to you? यहां तक रहने दो. अब मेरा भी गला दर्द करने लगा है. So yes, it is okay. Clear? समझ में आया तुम्हें जहां तक पढ़े हैं? Yes, sir. Okay. Thank you. Can I end? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, ये ले sir. लियो स्क्रीनशॉट. शुभम पांडे, शुभम, सर एक बार और लेने दीजिए ना. हाँ ले लो. यस सर, ले लिए हैं. ओके वेरी गुड, ले लिए. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.